Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, GK Gowani Government College, Bhinmal. Today, I will discuss about the part 3rd on Protozoa. It will be the second part on its classification. In the first part, I have told you regarding the subphylum Sarcomastigophora and the classes of Sarcomastigophora, the flagellata. Today we will begin again from the Sarcomastigophora with the second superclass, that is Opellinata. Opellinata as a common example of animal like Opellina. So the superclass Opellinata has example like Opellina, which generally present along with the other rectal ciliate in the rectum region of the frog as a endocommensal. Sometimes if their population increases, they may cause some problem to the host. The main characteristic features, they have more than 2 nuclei. Usually many nuclei are present inside their body, but all are similar. It means monomorphic nuclei. The reproduction is by symmetrogenic binary fission or by syngamy of anisogamids. And they are mainly parasites in frogs and toads. तो जो अधिवर्ग ओपेलाइनेटा के सदस्य हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मेंढक और भेंक के मलाशय के अंदर पाए जाते हैं और एक ही तरह के उनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं. द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया लाइक फ्लैजिला, मतलब पक्षमाप की तरह उनमें असंख्य कशाब उपस्थित होते हैं. Then the third superclass, that is the Sarcodina. Their body is mostly amoeboid without definite pellicle, some with a skeleton of some kind. The locomotion is by pseudopodia. Nutrition is either holozoic or saprozoic. The classes include Rhizopodia. The pseudopodia are present as Lobopodia, Philopodia और Reticulopodia and it is without axial filament. कहने का मतलब ये है कि जो अधिवर्ग सार्कोडीना है, इसमें जो शरीर है इनका वो कैसा होता है, कोई निश्चित आकृति नहीं या आकार नहीं होता है और तनुत्व या पेलिकल का इनमें अभाव होता है. कुछ के अंदर क्या होता है, कंकाल उपस्थित होता है. जो गमन है, गमन इनमें अलग अलग तरह के कूटपाद के द्वारा होता है और जो पोषण है वो होलोजोइक या सेप्रोजोइक होता है. जो पहला वर्ग है राइजोपोडिया, राइजोपोडिया के अंदर लोबोपोइडिया के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं या फिलोपोडिया भी हो सकता है और रेटिकुलोपोडिया भी होता है, परंतु उनमें कभी भी अक्षीय तंतु नहीं पाए जाते. It has subclass A, Lobosia, as clear from the name. The pseudopodia are as Lobopodia, for example, amoeba and entamoeba. The second subclass is Philosia. It means the pseudopodia are like Philopodia. And the third one is Granuloreticulosia, which include the Foraminiferidia. They are the large size multi-chambered calcareous shells, one or more openings like Ilphidium और Polystomela. कहने का मतलब है जो तीसरी सब क्लास है ग्रेन्यूलोकोसिया, उसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियमयी कंकाल पाया जाता है जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, कक्ष पाए जाते हैं. दिस इज द ट्रोफोजोइट ऑफ एंट अमीबा कोलाई. The other examples of sarcodines like amoeba, arcilla, actinophrys, clethrina are shown in this slide. These are the foraminiferan test showing the shells. In continuation with the superclass Sarcodina, the second class, the Actinopodia, as it is clear from the name. ये दूसरा वर्ग है Actinopodia, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है. Pseudopodia, mainly exopodia with axial filaments radiating from a spherical body.
The subclass A is Haliozoia. Spherical protozoans known as sun animalcules like actinophores. कहने का मतलब यह है कि इसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वो एक्सोपोडिया के रूप में होते हैं और उनमें अक्षीय तंतु पाए जाते हैं और बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि हम बचपन में चित्र बनाते थे सूरज का कि उसके चारों तरफ हम क्या करते थे, उसकी सूर्य की किरणें दिखाते थे अक्ष के समान। तो उसी के समान ये संरचना दिखाई देती है हेलियोजोआ के अंदर। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सन एनिमलक्यूल बोलते हैं या सूर्य जंतुक बोलते हैं। एक्टिनोफ्रिज इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। द सेकेंड सब क्लास इज रेडियोलेरिया. Their body is naked or with a perforated chitinoid central capsule. इनके अंदर एक केंद्रीय कैप्सूल पाया जाता है. There were separate endoplasm and ectoplasm as in the case of colozoon. The third subclass is Acantheria. They have imperforate non-chitinoid central capsule without pores. पहले के अंदर pores उपस्थित थे मतलब छिद्र, और इसके अंदर pores अनुपस्थित होते हैं. And the skeleton is of strontium sulfate. यहां पर जो कंकाल है वो क्या है, स्ट्रॉन्शियम का बना हुआ होता है. The fourth subclass is Proteomyxidia. Proteomyxidia pseudopodia are as Philopodia and they are the parasites of algae. Say for example Pseudospora. Then the last class of Sarcodina, it includes Pyroplasmia. The Pyroplasmia has small parasites in RBC of vertebrates like Babesia. कहने का मतलब यह है जो पायरोप्लाज्मिया है, पायरोप्लाज्मिया के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, परिजीवी होते हैं जो कशेरुक जंतुओं की लाल रक्ताणु के अंदर पाए जाते हैं. इट मीन्स दे आर दी intracellular parasites of vertebrates, just like the Plasmodium. This is how the radiolarians are undergoing the binary fission. With this, I complete my lecture on Protozoa classification, the second part, in which I have described regarding the two superclasses of Sarcomastigophora, which included the Opellinata and Sarcodina. आज हमने बात की वर्गीकरण के द्वितीय भाग की प्रोटोजोआ की, जिसमें मैंने आपको बताया सार्कोडीना के बारे में और ओपेलाइनेटा के बारे में. जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि ओपेलाइनेटा के अंदर वास्तव में जो कशाब है वो पक्षमाप की तरह होते हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और उनकी जो लंबाई है वो पक्षमाप की तरह कम होती है. पर ओपेलाइनेटा इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक जो है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और इसके अलावा ये सभी केंद्रक क्या होते हैं, एक रूप के होते हैं, मतलब समान होते हैं, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई. दूसरा जो सार्कोडीन की हमने बात की जिसमें अमीबा के आते हैं, जिसमें हमने बात की 3 अलग अलग क्लासेस की, वर्गों के बारे में, जिनके अंदर अमीबा भी आते हैं जो फ्री लिविंग है, जिसके अंदर सन एनिमलक्यूल भी आते हैं जो एक्टिनोपोडिया में आते हैं. इसमें फॉर्मेनिफेरन टेस्ट आती है जो मैंने अभी वापस रिपीट की है एक स्लाइड ये. तो जो सार्कोडीन्स हैं उसमें अमीबा जिसमें कूटपाद बन रहे हैं, आर्सेला का एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे. एक्टिनोफ्रीज अगर आप गौर से देखेंगे जो मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल स्फेरिकल बॉडी होती है और जैसा हम बचपन में चित्र बनाते आए हैं सूरज का कि उससे क्या है, बिल्कुल इस तरह से सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं, हम जैसा डायग्राम ड्रॉ करते थे, चित्रकारी करते थे, बिल्कुल उस तरह से संरचना इसकी दिखाई देती है कूटपाद की वजह से. ये कूटपाद यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सोपोडिया के रूप में पाए जाते हैं. इसके अलावा हमने बात की एंट अमीबा की. एंट अमीबा कोलाई यहाँ पे मैंने दिखाया है. इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी है जो भी
क्या होता है, मानव शरीर की आंत के अंदर परिजीवी है, मतलब अंतः परिजीवी के रूप में पाया जाता है। तो जो सुपर क्लास सार्कोडीना है, इसके अंदर कूटपाद ही पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के कूटपाद के आधार पर हमने इसका क्या किया है, वर्गीकरण किया है कि लोब के समान है तो लोबोपोडिया हो गए, लोबोसिया में आ गए। फिलामेंट्स के समान हैं लगभग तो फिलोसिया हो गया। और अगर वो क्या है, बिल्कुल बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, तीखे निकल रहे हैं, चैम्बर्ड हैं, तो ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया हो गया। दूसरी जो सुपर क्लास के अंदर क्लास आ रही है एक्टिनोपोडिया, जिसमें हमने सन एनिमलक्यूल के बारे में बात की, जिसमें बिल्कुल सूर्य की तरह ही संरचना होती है। और इसके अलावा अंत में हमने बात की पायरोप्लाज्मा का, पायरोप्लाज्मा के अंदर बाबेशिया जैसे अंतराकोशिकीय परिजीवी पाए जाते हैं। So with this, I finishes my lecture. Thank you. धन्यवाद।